ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਯਾ ਰਾਈਟ, ਝੁਮਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਐਂਡ ਕਲੀਰੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਘਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਵੀਟ। ਚੂੜਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਘਾ ਤੇ ਮਨੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਮੇਘਾ ਮਨੋਜ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਣਾਪਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਣਾ तो डेफिनेटली यस, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है पंजाब की। और गोल्डन टेम्पल में जाके एक अलग सा सुकून महसूस होता है। नेशनल टेलीविजन ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ कि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं ਹੈਗੇ। यस, वो दिलजीत दोसांझ का बहुत मतलब होता है ना कि उसके गाने बहुत मीनिंगफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। हाँ जी। आपका जो ये सीरियल है ये बहुत ही ज़्यादा एक इट्स अ सीरियस इशू, दुआबा मालवा, जहाँ से बहुत सारे लड़के बाहर ही जाते हैं और शादी इसी बेसिस पे होती है कि लड़का बाहर है। कि हम लोग शुरू से अपनी बेटियों को ये बोलते हैं कि कल तो तेरी शादी होनी है, तेरी शादी होनी है, तेरी शादी होनी है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर पहले से क्रिएट कर देते हैं। मन में एक्साइटमेंट तो होती है, ऑब्वियस सी बात है ना? आप किसी एक इंसान के साथ आपकी सिर्फ शादी हुई है, आप उसे जानते भी नहीं थे, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान को कि वो सब कुछ लुटा दे आप पर? ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨशिप ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है या अच्छा टाइम लग रहा है, लेकिन आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है और वो आपको प्यार करता है, तो आपका जो बुरा टाइम भी है ना वो कट जाएगा। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, डिसएग्रीमेंट होते हैं, मतलब होता है ना, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप अपना हाँ नहीं भाई, हमें मेरे को तो ड्रामा नहीं चाहिए होता, मतलब होता है ना लाइफ में हम फन वाला ड्रामा, मतलब सीरियस नहीं, कहीं आप एक दूसरे को हर्ट करना शुरू कर दो, वैसा नहीं। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਜਣਾ ਸਵਰਨਾ, ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ, ਹਮਸਫਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਬਟ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮਸਫਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਸਫਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਸਫਰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਵੈਲ, ਮੇਘਾ ਬਰਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਹਾ ਐਂਡ ਕਿੰਸ਼ੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਘਾ ਬਰਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਸੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਟਸ ਰੇਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, है ना? हमारी वजह से बरसे बादल बाहर। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ, ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਹਾ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ? हाँ, घर घर की कहानी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो डेफिनेटली ये सारे टीवी शोज तो देखते थे। और मम्मा तो ड्रेसिंग टेबल पे वो जो रखा होता था, तो नेल पेंट्स उठाकर लगाना। तब तो व्लॉगिंग भी नहीं होती थी, आजकल के बच्चे छोटे छोटे व्लॉग करना शुरू कर देते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि काश हमारी भी ऐसी वीडियोज़ होती, पर या आई मिस माई चाइल्डहुड। ਮੰਮਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੂੰ, ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ शौक है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰਿੰसेस है ना, सो देखते हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ सब कर। हाँ बिल्कुल, अभी जब जैसे ये बोल भी रही थी तो मुझे अंदर से मेरी डॉटर का ख्याल आ रहा था, साइशा। मतलब होता ना यार, लड़कियों को शुरू से सजने संवरने का मतलब होता ना प्रॉपर, वो भी जब एक्चुअली इसकी वीडियोस भी हैं, हम लोगों ने बहुत इंस्टाग्राम पे डाल रखी हैं कि मतलब टॉडलर भी थी ना, तो पता नहीं कैसे लड़कियों को मेकअप का मतलब अलग सेंस अलग से होता है। मतलब सोचो बच्चों को मेकअप का सेंस है यार, मतलब वो अभी भी मतलब फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि उसने पूरा मुंह पोत के आ गई थी, पाउडर लगा के, लिपस्टिक इतनी बड़ी लगा के, मतलब होता ना कि स्ट्रेंज नो कि बेटियां सिर्फ मम्मी को कॉपी कर पाती हैं, पापा को नहीं करती बिल्कुल भी। कि पापा कैसे हेयर स्टाइल करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब होता ना वो, क्योंकि आई थिंक कि इनहेरेंटली भगवान ने उन्हें बनाया वैसे है। हाँ, और कल तो कमाल हो गया, मेरी बेटी मतलब होता ना, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आज के बच्चों से, क्योंकि उसकी वैसी वो नहीं है, लेकिन आज 6 years, लेकिन उसने मेरा पूरा बैग उसने पैक किया आज आने का। मतलब होता है ना कि मेरी जीन्स डाली, मेरी शर्ट डाली, मेरी ब्रश लेके आई, तो मतलब होता है ना पूरा बैग उसने। तो बेटियों को शुरू से ट्रेन किया, मतलब ट्रेन कर रहा, हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कुछ सीखती हैं, अडैप्ट कर लेती हैं, बहुत मैच्योर हो जाती है बचपन से ही। राइट, सो आपसे शुरुआत करते हैं। आपका जो ये सीरियल है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इट्स अ सीरियस इशू। स्पेशली अगर मैं पंजाब की हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँ, कुछ एक बेल्ट्स ऐसी हैं हमारी, दुआबा, मालवा, जहाँ से बहुत सारे लड़के बाहर ही जाते हैं और शादी इसी बेसिस पे होती है कि लड़का बाहर है। तो मैरिज एक ऐसा सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों की कंपेनियनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मैरिज के यहाँ पे मायने ही बदल गए हैं, है ना। तो आप इससे क्या समझते हैं, खुद के सीरियल के कॉन्सेप्ट को अगर देखो और खुद की बात भी करो रिलेशनशिप को लेके। देखिए, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि गलती एक्चुअली सब लोगों की है कि हम लोग शुरू से अपनी बेटियों को ये बोलते हैं कि शादी होना है, कल को तेरी शादी होनी है, तेरी शादी होनी है, तेरी शादी होनी है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर पहले से क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि तेरी शादी अब्रॉड में ही करनी है, किसी NRI से करनी है, तो वो भी गलत है। मतलब चीज़ों को ना ऑर्गेनिकली होना चाहिए, मतलब होता है ना, जो जिसको जैसा प्यार लगे वैसा वो। अरेंज मैरिज ठीक है, अरेंज मैरिज भी कई बार वर्क करती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आजकल के ज़माने में ना पहले से पार्टनर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को हो सकता है आपका पार्टनर बाइपोलर निकले, ठीक है, हो सकता है अभी जैसे मनोज का कैरेक्टर है कि मुंह पे कुछ और दिखा रहा है और पीछे से कुछ और निकले, तो ये तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो शादी का इतना ज़्यादा प्रेशर आजकल के ज़माने में मतलब नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए जब उनको लगता है कि उनको सही पार्टनर मिल गया, क्योंकि गलती भी होगी तो उनसे होगी, आपकी गलती नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं इतने सारे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कि मन में एक्साइटमेंट तो होती है, ऑब्वियस सी बात है ना, लेकिन डर इक्वली एक साइड डर चल रहा होता है कि पता नहीं अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाएगा या ना मिल पाएगा, शादी के बाद कैसी चीज़ें टर्न हो जाएंगी, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट करनी पड़ती है लड़की को तो पूरी। तो आप सीरियल की स्टोरी लाइन को देखते हुए या समाज के जो ऐसे इशू है उसको देखते हुए आप शादी का क्या मतलब समझ चुके हैं अब तक? शादी का मतलब तो एज ही सेड कि कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, बट आई फील कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बचपन से अब जस्ट डॉटर्स हैं जो अपने मदर्स के बहुत क्लोज होती हैं, तो पहले ज़माना अलग होता था, तो वी गेट टू नो फ्रॉम आवर पेरेंट्स मदर्स से कि उन्हें बचपन से बोला जाता है कि बेटा तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, तो कोई बात नहीं, शादी के बाद कर लेना। ठीक है, फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद हस्बैंड बोलता है कि नहीं तुम्हें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। जो मदर इन लॉज होती हैं तो कुछ सपोर्टिव होती हैं, लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए तो ज़्यादातर यही है कि जो वुमेन है उन पर ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। तो जो एहसास होती हैं कि नहीं हमने तो अपने टाइम पे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं किया, तो तुम भी घर संभालो। तो आई थिंक वो मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पहले वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ताकि अगर लड़की की एजुकेशन कंप्लीट होगी तो वो आगे जाकर अगर
आई डोंट आई डोंट विश कि ऐसा किसी के साथ हो जैसा, लेकिन मेघा के साथ जैसा हुआ है, कम से कम वो जाकर अपनी कोई नई ज़िंदगी तो शुरू कर पाएगी। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। आप किसी एक इंसान के साथ, आपकी सिर्फ शादी हुई है, आप उसे जानते भी नहीं थे, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान को कि वो सब कुछ लुटा दे आप पर। अगर आपका प्यार, आप कितना ही प्यार हो, लेकिन आपको इतने कैपेबल होना चाहिए कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको। वेरी राइट। तो आई थिंक मैरिज जो है वो दोनों तरफा होती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल होनी चाहिए, और एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है पहले। राइट। सो अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर वालों ने प्रेशराइज्ड किया हो, या आपको एक टाइम पे ऐसा लगा हो कि नहीं, अब्रॉड जाके रहना इट्स सेफ और बेटर, और सेटल होने के लिए इट्स एन गुड ऑप्शन? नहीं, मैं बेसिकली ये मानता हूँ कि जहाँ आपकी फैमिली है वहाँ आपका घर है। और मुझे शुरू से, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे कभी भी अब्रॉड जाके रहने का क्रेज़ नहीं था। मुझे शुरू से इंडिया अच्छा लगता है। क्योंकि इंडिया में ये पूरी यादें जुड़ी हुई हैं। प्लस मैं अब्रॉड करूँगा क्या, जब पूरी फैमिली, दोस्त लोग कोई नहीं होगा, तो मतलब होता ना। और हम लोग तो स्पेशली एक्टिंग में है, तो हमारी तो इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो अब्रॉड का मेरे को कोई भी शौक रहा नहीं है। और जो सहूलतें आपको इंडिया में मिल सकती है ना, वो आपको अब्रॉड में नहीं मिल सकती। जो प्यार, मतलब प्यार हर जगह मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना वाइब अलग है। मतलब वो वाइब इंडिया में ही मिलती है, रिश्तेदारों की और वो सब चीज़ें। तो वो जो छोटी मोटी नोक झोंक भी होती है ना, वो इंडिया में लोग इमोशनल बहुत होते हैं, लेकिन वो मज़ा बड़ा आता है। दैट्स ट्रू। सो ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਯਾ ਰਾਈਟ, ਝੁਮਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਐਂਡ ਕਲੀਰੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਆ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਆਈਫਲ ਟਾਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਘਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਈਫਲ ਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਵੀਟ। ਚੂੜਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਘਾ ਤੇ ਮਨੋਜ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ मंगलसूत्र भी मेघा मनोज। So it represents that she is deeply, madly, desperately in love with Manoj. How sweet. Yeah. ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? सबसे इम्पोर्टेंट है मैम अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है या अच्छा टाइम लग रहा है, लेकिन आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है और वो आपको प्यार करता है, तो आपका जो बुरा टाइम भी है ना, वो कट जाएगा। तो एक मैरिज का चलने के लिए देखो, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, डिसएग्रीमेंट होते हैं, मतलब होता है ना, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप अपना, हाँ नहीं भाई, हमें, मेरे को तो ड्रामा नहीं चाहिए होता, मतलब होता है ना लाइफ में, हम फन वाला ड्रामा, मतलब सीरियस नहीं, कहीं आप एक दूसरे को हर्ट करना शुरू कर दो, वैसा नहीं। बात में आप कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हो कि छुप जाते हो, और लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, लड़के ये बोलते हैं, लेकिन लड़के कभी कभी ना मुंह पे बोल देते हैं कि तूने मुझे ऐसा बोला है तो ये बात मुझे चुप गई, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, वो ऐसे नोट्स बना के रखती हैं, वो उनको चुप जाते हैं, वो उनकी लिस्ट दिल में अभी इन्होंने बोला कि कुछ लड़कियां भी हैं जो कि लड़कों के साथ ऐसे छोड़ के उनको अबैंडन कर देती हैं। हाँ, तो मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जैसे मेरी, कि अगर मेरे साथ अभी कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देके मुझे कुछ बोल दे तो मेरे दिल में रह जाती है, वो चुप जाती है मुझे बात, और फिर मैं कभी 2-3 महीने बाद जाके बोलूँगी, तो सब मौके पे चौका। ओके, बट मैंने लगता है कि खटास मिठास रिलेशनशिप ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤਾਂ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ? आई थिंक लोग बहुत ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
ਤੇ people were coming and asking us, do you want chai, do you want something, you know, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾਪਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सेम जैसे नेहा ने बोला कि यहाँ पे अपनापन बहुत है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है पंजाब की। और सेकेंडली खाना, मतलब होता है ना, और प्लस हाँ कॉपी पेस्ट एक्चुअली, इसमें और कोई अलग चीज़ नहीं है। और हाँ डेफिनेटली गोल्डन टेम्पल, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो क्या कहते हैं, मैं उससे पहले भी आया हुआ हूँ, तो गोल्डन टेम्पल में जाके एक अलग सा सुकून महसूस होता है। अभी भी इसके बाद हम लोग गुरुद्वारा ही जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। तो बस मतलब ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਅੱਛਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ देखता हूँ, और मेरे को दिलजीत दोसांझ का बहुत मतलब होता है ना कि उसके गाने बहुत मीनिंगफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। हाँ जी। हाँ, फिल्म करोगे? फिल्म किसके साथ? मतलब पंजाबी? मेरे को पंजाबी बोलनी नहीं आती, लेकिन अगर कोई मेरे को सिखा दे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? पूछो ही मत, मतलब ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। हाँ डेफिनेटली करूँगी। फिल्म करनी है तो ये स्टेप ले आए। यस डेफिनेटली। ओके, सो बाबा जी ब्लेस यू बोथ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो एंड अपकमिंग जो भी है। सो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਬ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਬੰਬੇ, ਬੰਬੇ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ ਓਕੇ, ਇੰਜੋਏ ਮੌਨਸੂਨਸ, ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।